Yes, good morning everyone. We will continue with the coordination compound, and we had seen in a coordination compound what is the meaning of central metal atom or ion. We also know the ligand and its types and the bond which is between central metal atom and ligand, and the bond is coordinate bond. So एक बार just बोल दीजिए, what do you mean by ligand? What is a ligand? What is a ligand? A molecule or atom molecule or ion which is capable of donating electron. Ligand capable of donating electron, central metal atom or ion capable of gaining electron. Types of ligand में first type क्या देखा था आपने? Monodentate. Second type क्या देखा फिर? Polydentate. And the third type is what? Ambidentate. Ambidentate. The bond is coordinate bond. Now we will see some terms which we use in a coordinate compound. So terms used in coordination chemistry. This is what the heading we can provide. Terms used in coordination chemistry. So used in coordination chemistry. Okay, the first term which we take is a coordination sphere. Coordination sphere. So what does it mean, coordination sphere? If we take an example of K3FeCN6. K3FeCN6 as a complex, we take an example of it. Then in this example, coordination sphere means central metal atom and ligands bonded to it, which are placed in a square bracket, is what we call as coordination sphere. So central metal atom or ion plus ligand. अब ligand में any type of ligand, so central metal atom or ion plus ligand placed in a square bracket, is what we call as coordination sphere. Coordination sphere. Okay, तो ये first term हो गई आपकी. In this example, in the above example, FeCN6 in square bracket with 3 minus charge is what we call as coordination sphere. Next we take, अब इस पे ये चार्ज जो आ गया है तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस होगा. The charge observed on square bracket makes the compound as a complex. So we will name it as a complex. तो coordinate compound को आप अब क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन, है ना. चार्ज आ गया 3 माइनस 3 प्लस +1 +2 +3, ये चार्जेस आ रहे हैं जब काय पे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे. कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ जाएंगे तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं होगा, वो होगा अब आपका कॉम्प्लेक्स आयन. चार्ज आ गया तो आयन हो जाएगा,
This will be a complex to be called as complex. Okay. Now third point. Third point is ionizable group. Ionizable group or molecule. Ionizable group or molecule. अब usually ionizable group or molecule shown outside the coordination sphere, that is square bracket के बाहर में आयोनाइजेबल ग्रुप और मॉलिक्यूल शो करेंगे. जैसे ये एग्जाम्पल में पोटेशियम K3 is what? Ionizable group or molecule. Ionizable group or molecule. This is what we can take as a ionizable group. K4FeCN6 और K3FeCN6. तो ये ionizable means क्या मतलब हो रहा है कि पोटेशियम होता है +1 and how many they are 3. तो ये दे देगा +3 और ये -3. तो काउंटर बैलेंस करने के लिए आयंस जो रहेंगे वो आउटसाइड द ब्रैकेट. अब ये वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो आयन दिया है ये बिफोर द ब्रैकेट है. इन सम केस यू विल फाइंड इट दैट दे आर इवन प्लेस्ड आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो उसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपको मिलेंगे आयंस. जैसे एक एग्जाम्पल यहां देखते हैं, कोबाल्ट NH3, cobalt NH3 5 times CO. मैंने आपको कहा था CO means what? 3 times Cl. तो ये वाले कॉम्प्लेक्स में ये वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेंट्रल मेटल एटम ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया लिगेंड, ये भी लिगेंड है और ये इसका काउंटर आयन विच इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. पहले भी आ सकता है या फिर बाद में भी आ सकेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में. ओके, सो दैट मीन्स दैट इज काउंटर आयन है ना, काउंटर आयन बोलेंगे इसको. काउंटर आयन इज K3 इज द काउंटर आयन. K3 काउंटर आयन. अब K3 में भी क्या मिलता है हमको? K+1 मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना. दैट इज व्हाट वी से ये काउंटर आयन K+1. Now next point, if we carry out ionization of this complex ion, ionization, तो बोल सकेंगे आप किस तरह से इसका आयोनाइजेशन होगा? Can you say how can we get ionization of it? कैटायन एनायन हमने आपको समझाया है, तो क्या होगा इसमें से? ये कैटायन निकलेगा और रिमेनिंग क्या रहेगा? एनायन. तो क्या लिखे हम? आयोनाइजेशन ऑफ K3FeCN6. कितना चार्ज दिखाया हमने इसमें? 3 माइनस चार्ज दिखाया है. इसका आयोनाइजेशन करो बेटा. चलो आयोनाइजेशन कैरी आउट. कैटायन एनायन को अलग कर लो. तो क्या लिखेंगे हम?
थ्राइस K+1 प्लस केटायन मिल गए। अब एनायन मिला लो, FeCN6 है ना, एनायन होगा FeCN6 3- हो गया, बैलेंस हो गए चार्जेस, केटायन एंड एनायन। अब एक बार आयनाइजेशन हो गया तो अब आप इजीली इसमें से फिर से ये काउंटर आयन हो गया, आउटसाइड द स्फीयर था जो, और ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जस्ट समझने के लिए एक बार फाइनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, NiNH3 6 times Cl2। नाउ फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल आयन, ligand and counter ion। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको ही पूरा बता सकते हैं ऐसा, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज काउंटर आयन, अब इसका आयोनाइजेशन लिखते हैं। तो आयोनाइजेशन NiNH3 6 times Cl2, इसका आयोनाइजेशन, चलिए क्या मिलेगा आयोनाइजेशन, सिंगल एरो भी दिखाया तो चलेगा, हाँ जी, आयोनाइजेशन ट्वाइस Cl-1। अब ये 2 नेगेटिव चार्ज है तो निकल पे 2 पॉजिटिव आने चाहिए अब, है ना। इस स्फीयर पे क्या आ जाएगा, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे NiNH3 6 times होल स्क्वायर ब्रैकेट -2, oh I am sorry, +2 हो गया आयनाइजेशन। भी आवाज इसमें आप कैच करेगा, उसको चालू नहीं कर रहे। एनीवेज, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज आयोनाइजेबल ग्रुप और आयन काउंटर आयन, एंड हाउ टू कैरी आउट देयर आयोनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट we will see is charge number of complex ion, charge number of complex ion, charge number of complex ion and oxidation state of metal ion, and oxidation state of metal ion। अब एक तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि नेट चार्ज अवेलेबल, नेट चार्ज अवेलेबल,
जैसे नेट चार्ज अवेलेबल, यहाँ हमें ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में नेट चार्ज क्या दिख रहा है, 3 माइनस. दिस इज द नेट चार्ज. नेट चार्ज अवेलेबल on the complex ion is its charge number. On the complex ion, net charge available on the complex ion is its charge number. अगर उस पे कोई चार्ज दिया है, नेट चार्ज, तो दैट इज द चार्ज नंबर. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, नाउ व्हाट इज नेट चार्ज? नेट चार्ज, अगर चार्ज नहीं दिया हुआ है, चार्ज अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको कैलकुलेट करना होगा. नेट चार्ज इज द algebraic sum of, क्या करना पड़ेगा, algebraic sum of the charges carried by, is the algebraic sum of charges carried by metal ion and ligands, metal ion and number of ligands. तो दोनों का एडिशन कर दो, यानी नेट चार्ज अगर नहीं दिया रहता है, हमें फाइंड आउट करना है. नेट चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन मेटल आयन. ये दिया रहेगा आपको नोटेशन में, चार्ज ऑन मेटल आयन प्लस चार्ज ऑन नंबर ऑफ लिगेंड्स, कि कितने लिगेंड्स हैं और उस लिगेंड पे कितने चार्ज है. जैसे यहां पर ये साइनाइड का -1 चार्ज, ठीक है, साइनाइड इज -1 चार्ज एंड दे आर 6 इन नंबर. तो फॉर एग्जाम्पल इसी को कंटिन्यू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल K3FeCN6 3-, तो इसमें तो नेट चार्ज तो ऐसे ही दिया हुआ है. सपोज अगर नेट चार्ज नहीं दिया होता, नेट चार्ज नहीं दिया रहता, तो इसमें ये नेट चार्ज इज इक्वल टू -3. Net charge is 3-. Second example में we will find it out. NiNH3 6 times Cl2. हाँ जी, इसमें निकालिए आप नेट चार्ज. नेट चार्ज इज इक्वल टू +2 चार्ज ऑन मेटल आयन. अब दिया है क्या आपको चार्ज मेटल आयन पे? नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे आप फिर? नेट चार्ज इज इक्वल टू, इसको x रख ले, चार्ज ऑन मेटल आयन. चार्ज ऑन मेटल आयन तो यहां तो दिया नहीं है कुछ ये, बट चार्ज ऑन लिगेंड ये पता है हमको, और इसका अगर आयोनाइजेशन करते हैं तो ये भी हमें समझ में आता है कि जो NH3 6 टाइम्स निकल से बॉन्डेड है, दैट कैरी 2 पॉजिटिव चार्जेस. तो नेचुरली ये जो लिगेंड है ये न्यूट्रल है. ये जो NH3 इज लिगेंड, निकल इज सेंट्रल मेटल एटम, है ना. Cl2 आर द काउंटर आयंस. आगे सारी चीजें क्लियर. अब इसमें आयोनाइजेशन से पता चला कि मेटल आयन का कितना है, +2. अब लिगेंड का कितना होगा, 0 × 6 टाइम्स. 0 × 6 टाइम्स.
आएगा 0 into 6 times। अब ये नेट चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे आ जाएगा? ये निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के हमको +2, ये क्या हो गया? ये 0 हो गया, ये +2 आपका आंसर आ गया। ये तो बेटा 0 हो गया पूरा। नेट चार्ज क्या आ गया? +2। लेकिन काउंटर आयन से भी हमें क्या मिल रहा था? +2। तो इसका नेट चार्ज मिल गया +2। इज इट क्लियर? +2 चार्ज आ गया, नेट चार्ज इज +2। तो ये नेट चार्ज एक निकालना हमको सीखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार वो दिया नहीं रहता है और हमें फिर फाइंड आउट करना होता है। तो कैलकुलेशन, द चार्ज, पहले तो एक जनरल सेंटेंस लिखिए, द चार्ज कैरिड बाय सेंट्रल मेटल आयन इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर दिया है तो, जैसे हमको यहां मिल रहा था -3, है ना? चार्ज अगर है तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और अगर नहीं दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, चार्ज नंबर लिखना चाहिए हमें, है ना? चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस चार्ज प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड। सिंपल सी इक्वेशन है एंड वी विल फाइंड इट आउट। तो नेट चार्ज अवेलेबल, तो चार्ज नंबर हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट, हाउ टू गेट द ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ हाउ टू गेट the oxidation number to this particular compound। लेते हैं complex CONH3 6 times, and the net charge we see is 3+. Find out oxidation number of cobalt। Find out oxidation number of cobalt। तो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑफ लिगेंड्स। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना लिखेंगे आप? 3 +3 दिख रहा है, ये +3 इज इक्वल टू, ये x मान लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड। मैंने कहा ये NH3 क्या है? न्यूट्रल लिगेंड, उसका चार्ज कितना है? 0। मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो न्यूट्रलाइज हो जाता। क्यों 0 लिया ये समझेगा क्या हमको? जैसे नाइट्रोजन पे 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इसके साथ शेयर कर लिया, है ना, और एक लोन पेयर है,
तो लोन पेयर के साथ वो बॉन्ड बना लेता, बाकी वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाती, तो नेट उसके पास चार्ज कुछ रहता नहीं। तो अमोनिया मॉलिक्यूल इज अ लिगेंड एंड इट कैरीज 0 चार्ज ओवर इट। आ गया बेटा, अब क्या करेंगे आप, x की वैल्यू 3 आ गई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 3, है ना, +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। सिंपल से छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना आ गया हमको, चार्ज भी फाइंड आउट करना आ गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, FeCN6 4+, FeCN6 +4 is the oxidation state. Find out oxidation state of Fe. Find oxidation state of Fe. अपने सिंपल से फॉर्मूले में लगा दीजिए। Charge, number of complex is equal to oxidation state of Fe plus charge of ligand. कॉम्प्लेक्स का चार्ज 4, ये x प्लस, अब साइनाइड -1 होता है ना, साइनाइड -1 है और कितने साइनाइड है 6, तो ये x -6 4, तो क्या करेंगे अब आप, x इज इक्वल टू, हाँ जी नहीं ना रे, 4 माइनस लगेगा, इतना ज्यादा नहीं होता ना, Fe की वैलेंसी ही नहीं होती उतनी, हाँ 2 पॉसिबल है, 4 माइनस होना ये एग्जाम्पल में, +4 कैसे ले लिया, +4 लिया, Fe लिया, तो साइनाइड -6 लिया, -4 + 6 है ना, -4 + 6 फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ ये मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लीजिए। अगर ये 4 रखे, ये x रखा, ये -6, ये -6 इधर आया तो -4 हो जाएगा, प्लस लिया तो -4 हो जाएगा, इधर वो 10 हो जाएगा, है ना, तो बराबर है वो इसमें, डन, -4, तो x की वैल्यू 2 आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe आपने फाइंड आउट किया इज 2। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। कितना टाइम है बेटा अभी, 10-11 मिनट है ना, काफी है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल in given complex, complex है Fe NH3 3 times, NO3 3 times, OO, Fe NH3 6 times, I'm sorry, Fe NH3 6 times, NO3 3 minus.
FeNH3 6 times, NO3 3 times। तो पहले इसका आयोनाइजेशन करो, तब आपको चार्ज नंबर मिलेगा। आयोनाइजेशन कर सकेंगे हम? क्या होगा आयोनाइजेशन? मुझे जो सबसे पहले समझ में आ रहा, NO3 पे -1 चार्ज होता है ना? नाइट्रेट is having -1 charge. How many times? 3 times. तो 3 एनायन आ गए अपने पास में, 3 नेगेटिव चार्ज आ गए। अब पॉजिटिव चार्ज वाले बॉक्स ब्रैकेट में रहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में FeNH3 6 times 3 plus। अब आपको ये भी पता है कि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। विलनकर आया क्या आंसर? है क्या विलनकर है? नहीं, आज कौन है फिर ज्वाइन? हाँ मुंडले मैडम, कितना आंसर आया है? क्या सो गए? जानवी दिवाकर, थोड़ा लाउडली। कितना? अरे इतना समय लगता है क्या? इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन है क्या? यहाँ सब जो बैठे हुए उन्होंने आंसर भी दे दिया मुझे। एक बार अपने को बेटा ये 4 नंबर मिल गया, फिर तो तकलीफ ही नहीं है। सिक्स आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ 3 इज इक्वल टू x प्लस x इज इक्वल टू कैसे 6 आया था अनामिका जी? अच्छा ओके। नेक्स्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लो, NiCO 5 टाइम्स CO। ये CO को, हाँ पिछली बार मैंने पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय CO? इट इज नॉट कोबाल्ट, कार्बोनिल, इट इज कार्बोनिल, है ना? स्मॉल ओ रहेगा तो कोबाल्ट हो जाएगा, और कार्बन के जितना अगर ओ लिखा है तो वो कार्बोनिल हो जाएगा। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। कॉम्प्लेक्स है, बस दिया हुआ है ये आपको। अब इसका आयोनाइजेशन कर सकेंगे क्या आप? It is basically a neutral complex. This is a neutral complex. पहले तो वो लिख ही लो। It is a neutral complex and CO is a neutral ligand. Carbonyl is a neutral ligand. So neutral complex, neutral
coordination compound CO is a neutral ligand. अब तो काम आसान हो गया अपना. 0 is equal to x plus 5 into 0. है ना? तो क्या आंसर बना आपका? 0. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज 0. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं आप सब लोग. मैं बोर्ड पे लिखता हूं, बाकी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे जरा. अ कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ, अ कॉम्प्लेक्स is made up of cobalt 3 and possess 4NH3 molecule, 4NH3 molecule and 2 Cl negative ions as ligands. What is the charge number? What is the charge number and formula of complex ion? चार्ज नंबर निकालना है और फॉर्मूला प्रोवाइड करना है आपको. सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट. फॉर्मूला पहले बना सकते क्या हम लोग? NH3 है 4 times and 2 chloride ions, है ना? These are also acting as ligands. तो ये NH3 4 times. आगे 2 chloride ions, 2 chloride ions as ligand. As ligand यानी चले गए डब्बे के अंदर. सही है? और मेटल आयन, ये दो ही चीजें रहती है स्फीयर में. क्वेश्चन तो